Thank you, Dr. Tarun Jadhav, for the lovely introduction. And I'm really glad to be in this room full of very learned people, especially doctors and coaches. And thanks to our audience also for being there at this hour of the day. And happy Mother's Day to all of you. To begin with, I want to check with you if I'm clearly audible and visible. If you can give me a thumbs up or just acknowledge in some way so I can continue. Yes. Great. Thank you. Thank you, Vanita ji. Okay. So, I know we are here in a room full of doctors who are qualified for physical health, for mental health, and just having the title doctor in front of you says a lot. It creates a lot of respect for what you have been qualified for and what you're giving service of. So what am I doing in this room? The reason I'm in this room and the reason I am a domestic abuse coach to begin with is because I have suffered domestic abuse. I am a survivor. And I found the purpose of my life by diving myself into this kind of work where I see that the service to other domestic abuse survivors is what gives me immense satisfaction today. This quick introduction was required because being a domestic abuse coach, one would ask why, what authority do I have? And this is the authority that I have. In the limited time that we have today, I cannot give you more than this as an introduction, but yes, as a part of the service that I'm here to give to people, I have also been a management consultant for the past 16 plus years, out of profession, but as a passion, I do domestic abuse coaching to be able to take forward survivors with higher self-esteem, confidence, clarity, and the conviction to live life beyond abuse, no matter whether they have experienced abuse in the past or they have been experiencing it as we speak. As I speak today, I'm going to be using a mix of Hindi and English. I'm comfortable in both languages. I hope you are too. So as we know that domestic abuse or domestic violence, which is overlapping and which is interchangeably used in our country, India, and also overseas, is a very sensitive topic and is a topic that is very widely shied away from. Now, because it is shied away from and it is sensitive doesn't mean there was some interruption here. Can I continue, Dr. Tarun? Can I continue? Okay, great. Thank you, Harita. So my understanding, as I said, comes from my experience. And what I bring to you here is, we know that it's a sensitive topic. We know that it is shied away from. So what really happens when a person is abused? What are the different channels that a person has when they get abused? Now we have authorities, we have the legal justice system, we have NGOs who work around this area. But the one thing that I found missing was to have a coaching impact or a coaching effort that should go towards survivors. Now, why do I say that? I will take a step back. अगर हम डोमेस्टिक अब्यूज और डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा, जिसे हिंदी में कहा जाता है, घरेलू हिंसा के बारे में बोले, तो हमारा सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग उन चीजों से आता है, हमारी सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग उन चीजों से आती है जो हमारे समाज ने हमें सिखाया हुआ है. क्योंकि कोई भी स्कूल की टेक्स्ट बुक, कोई भी किताब हमें ये नहीं सिखाती जब हम बड़े होते हैं कि डोमेस्टिक अब्यूज एक क्राइम होता है और अब्यूज क्या क्या होता है. और अगर हमने बचपन से किसी चीज को ऑब्जर्व किया है और हमें ये कहा गया है कि इसे एक्सेप्ट करो या इससे एडजस्ट करो या ये तो नॉर्मल है, तो हम उसी चीज को बड़े होके वही चीज का अडेप्ट कर लेते हैं, ये सोच के कि वो नॉर्मल है या इट्स ओके टू हैव दैट हैपन टू अस. बट हम यहाँ समाज की बुराई करने नहीं आए हैं, ना ही ये कहने आए हैं कि समाज ने हमें ये नहीं सिखाया या वो नहीं सिखाने आए, ना ही हम समाज को बदलना चाहते हैं. एक डोमेस्टिक अब्यूज कोच दूसरे जो सर्वाइवर है उसके लिए क्या कर सकता है? उसके लिए वही चीज कर सकता है जो उसने अपने आप के लिए की है, जो मेस टू मैसेज मैंने अपने लिए बनाया, उस चीज से मैं उभर के आई, उसी चीज की अंडरस्टैंडिंग, उसी चीज की जो हीलिंग पावर है, उसी चीज की जो सर्वाइवर सुपर पावर्स एज आई कॉल इट, वो सुपर पावर्स जो हम में हैं, वो हम किस तरह से अपनी लाइफ में चैनलाइज कर सकते हैं ताकि हमारी लाइफ
सिर्फ अब्यूज तक सीमित ना रह जाए, और ये मेरा मिशन है। तो सोसाइटी ने जो हमें समझाया वो समझाया, लेकिन हम एक्चुअली हिंसा के बारे में क्या समझते हैं? क्योंकि हम हिंदी में इसको घरेलू हिंसा बोलते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, एंड बिकॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम आई डोंट वांट टू आस्क टू मेनी पीपल दिस, इफ आई कैन गेट वन और टू आंसर्स आई विल एक्नॉलेज दोस। घरेलू हिंसा होता क्या है? अगर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहे तो प्लीज क्विकली चैट में डालिएगा, घरेलू हिंसा होती क्या चीज है? I'll wait for a couple of seconds. Thank you, Dr. Tarun Jadhav. Yes, it is violence, but violence of what kind? Preet, thank you. You're saying it is physical abuse. Thank you. These are the most common answers I get. Thank you, Tarun Jadhav. It's emotional as well. Yes, thank you. The most common answers I get while I work with domestic abuse survivors is हमारे साथ मारपीट हुई है, हमारी ये इंजरी हुई है, हमारी वो इंजरी हुई है। थैंक यू उर्मी जी, थैंक यू खुशबू एज वेल। लेकिन जब हम उनके डेप्थ में जाते हैं, उनके इश्यूज के डेप्थ में जाते हैं, जब हम एक एक चीज को समझते हैं, तब तो जाके वो समझते हैं कि अब्यूज होता क्या है। और ये बड़ी अजीब सी बात होती है कि आपके साथ कोई फिनोमिनन हो रहा है और आप में अवेयरनेस ही नहीं है कि उस फिनोमिनन का मतलब क्या है, क्योंकि यही चीज समाज ने या परिवार ने या दोस्तों ने या किसी भी भाग, कम्युनिटी के भाग ने हमारे दिमाग में डाल दिया है कि अब्यूज फिजिकल से ज्यादा नहीं हो सकता। अब्यूज तभी हो सकता है जब आपके साथ मार कुटाई, मारपीट या कोई ऐसी चीज हुई हो जिसको आपके शरीर पे देखा जाए तो वो अब्यूज माना जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये जो अवेयरनेस है, ये मेरे काम का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि इस अवेयरनेस को सामने लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक ये अवेयरनेस सामने नहीं आएगी तब तक आप डॉक्टर्स को और हम कोचेस को अब्यूज सर्वाइवर्स अप्रोच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इसी माइंडसेट में रहेंगे कि ये तो नॉर्मल है, या ये मेरी मदर ने या मेरी नानी ने या मेरी दादी ने या मेरी चाची या मासी ने भी सहन किया था, तो ये मेरी ड्यूटी है। तो ये जो बहुत बड़ा भाग अवेयरनेस का है, इसको मैं आगे लाना चाहती हूँ। और क्विकली, जिस तरह से हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स ने ऑलरेडी कहा है कि वर्बल और इमोशनल भी एक अब्यूज होता है। वर्बल, इमोशनल और मेंटल अब्यूज काफी ओवरलैप भी करते हैं। डेफिनेशंस में ना जाते हुए मैं आपको एक एक एग्जांपल दूंगी 4 या 5 तरह के अब्यूजेस का। वर्बल अब्यूज उस चीज को बोला जाता है कि जब आपके साथ कोई गाली गलौज हो या आपको कोई कोसे या आपको ऐसी तरह की चीजें एज अ पैटर्न बोलता जाए जिसका आपको असर होता जाए, आपका सेल्फ एस्टीम लो हो और आपको एक रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट ना दिया जाए। इस वक्त अगेन आई विल टेक अ स्टेप बैक। हम सिर्फ एक रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, मियाँ और बीवी के बीच का, और हम ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि सिर्फ एक माँ एक हस्बैंड से, अपने पति से अब्यूज का शिकार हो रही है। अब्यूज के और फॉर्म्स भी होते हैं अलग अलग रिलेशनशिप्स में, पर क्योंकि आज हमारा दायरा माँ तक सीमित है, हम यही देखेंगे कि माँ की तरफ जो आने वाला अब्यूज है वो उससे जब पीड़ित होती है और उसका शिकार होती है तो वो खुद उस चीज को समझती है कि नहीं। तो हमने देखा फिजिकल अब्यूज क्या है, हमने देखा वर्बल अब्यूज क्या है, और इमोशनल और मेंटल उसके साथ साथ ओवरलैप होता है। बहुत कॉमन चीज है हमारी कम्युनिटी में और हमारी सोसाइटी में डाउरी डिमांड, बिफोर एंड आफ्टर मैरिज एज वेल। वो भी इस चीज का एक दायरा है, दायरे में आता है कि ये वर्बल और इमोशनल अब्यूज और मेंटल क्रूएल्टी के डेफिनेशंस में आता है अगर हम लीगल साइड में जाएं तो। बट अगेन वी आर नॉट टचिंग द लीगल पॉइंट्स हियर। एक और तरीके का अब्यूज होता है जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक अब्यूज। इकोनॉमिक अब्यूज सिंपली मीन्स, और हर अब्यूज की गहराई में हम जा सकते हैं, हर अब्यूज के अलग अलग डेफिनेशंस हैं, हर जुरिस्डिक्शन में, हर कंट्री में कहीं वो माना जाता है, कहीं वो नहीं माना जाता है, लेकिन इसकी अवेयरनेस हर जेंडर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब्यूज आदमियों की तरफ भी होता है, अब्यूज एल्डर अब्यूज भी होता है, अब्यूज दूसरे रिलेशनशिप्स जो एक रूफ के अंडर रहे उनके साथ भी होता है। अगेन कमिंग बैक, इकोनॉमिक अब्यूज तो वो चीज हुई जहां पे पति ने आपको इतना पैसा नहीं दिया कि आप हाउस होल्ड संभाल सको, जबकि वो उतना कमाता है। इसका मतलब वो आपको इकोनॉमिक्स या पैसे से वंचित रख रहा है। दूसरा एक तरीका है कि आपकी अपनी बेसिक नीड्स
नहीं पूरी करता वो। मेरा अपना एक एग्जांपल दूं मैं आपको, मेरी मेडिकल नीड्स थी, मेरे को एक एम्बुलेंस की जरूरत पड़ी एक दिन, जिस दिन मैं अब्यूजिव स्टेट में थी, और मेरे हस्बैंड ने मेरे को मेडिकल निग्लेक्ट से अब्यूज किया. He did not let the doctors reach me, and he did not approach the doctors. So basically, I was abused on the another level beyond physical. I was abused on a level that added, which could be called medical abuse, which could be called economic abuse, which could be called even emotional abuse, because he did not allow the medical help to reach me. So this was about one of the abuses. The other one that I would like to go to is sexual abuse. A lot of the times this also gets overlapped with physical abuse. Sexual abuse में अगर संभोग जबरदस्ती किया गया हो या संभोग से होने वाली कोई हानि हुई हो आपको फिजिकली इवन इमोशनली, तो वो सेक्सुअल अब्यूज माना जाता है. और एक और तरह का अब्यूज है जो बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग मानते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया, जिसको बोला जाता है स्पिरिचुअल और कल्चरल अब्यूज. और इसका मतलब ये है कि अगर आपको एज अ वुमन आपका हस्बैंड किसी रिलीजियस प्रैक्टिस, कल्चरल प्रैक्टिस में फोर्स करे, या आपको अपनी रेगुलर प्रैक्टिस से वंचित रखे, और आपको अपनी पर्सनल बिलीफ्स से दूर करता जाए, तो वो स्पिरिचुअल और कल्चरल अब्यूज है. अगेन दिस ओवरलैप्स विद मेंटल एंड इमोशनल अब्यूज, बिकॉज रिलीजन is very personal to any individual. It doesn't matter whether you're a married couple. So if you take away their spiritual practices, religious practices, or cultural practices from them, they can feel emotionally abused. And a lot of narcissists do that. So here I will just wrap up the different kinds of abuses that one can talk about. And there is a lot of depth. This is only the tip of the iceberg and scratching the surface of it. So the key point here is, किसी भी तरह की हिंसा को आप इग्नोर नहीं कर सकते, और हर तरह की हिंसा जो आपके साथ हुई है वो एक तरह से इंटरकनेक्टेड है. इस चीज की पहचान, इस चीज की अवेयरनेस बहुत कम औरतों में होती है, क्योंकि इनके असर इनविजिबल होते हैं. सिवाय फिजिकल मार के आपको कोई और असर शायद ना दिखे, अगर आप उस परिवार में रहते हो तो भी, और अगर आप बाहर काम कर रहे हो, कम्युनिटी में हो, किसी फेस्टिवल में हो, आपको उसका असर इमीडिएटली नहीं दिखेगा. दूसरी बात, इसीलिए उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अवेयर नहीं हैं तो आपको पता ही नहीं होगा कि उसका समाधान कैसे निकाला जाए. और तीसरी बात, समाज ने, परिवार ने, दोस्तों ने या कम्युनिटी ने अगर आपको पहले से ही आगाह कर दिया है कि आपको अब्यूज के बारे में बोलना नहीं है, तो अगर आपके पास अवेयरनेस भी होगी तो आप ड्यूटीफुली अपना मुंह बंद रखेंगे. की मुद्दा और की नोट यही है कि किसी भी तरह की हिंसा को इग्नोर करने का मतलब है कि आप अपने को और हानि पहुंचा रहे हैं. जो हानि आपके परपेट्रेटर ने ऑलरेडी आप पे पहुंचाई है, उसको आप डबल अप करते हैं जब आप खुद को इग्नोर करते हैं. So as a mother, and I so deeply respect and acknowledge the fact that all the doctors who have spoken before me, especially Dr. Leena, जो आपने पॉइंट्स बताए थे, हमारा भविष्य हमारे बच्चे हैं, और बच्चों को समझने के लिए आपको बायोलॉजिकल मदर होना जरूरी नहीं है. इसलिए जबकि मेरे बच्चे नहीं हैं, मैंने आज तक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू डॉक्टर्स जो भी रिसर्च करी है, उससे मुझे बच्चों की तरफ और खिंचाव होने लगा है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो अब्यूज्ड मदर्स हैं, जितना ज्यादा वो अपने आप को इग्नोर करती हैं, उतना ज्यादा उनके बच्चों का भविष्य एट स्टेक होता है. और इसी खिंचाव की वजह से ये टॉपिक मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने लगा है. और उस फ्यूचर को बचाने के लिए माओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि समाज को भूल जाएं, समाज की सीख को भूल जाएं. हम यहाँ समाज को बदलने के लिए नहीं खड़े हैं, और ना ही ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक है कि अगर हमारे साथ कुछ हो रहा है
तो हमें उसका समाधान निकालना पूरी तरह से आना चाहिए. It all starts with awareness, but without action, awareness is only psychological entertainment. So the first level of work that I do is about awareness. The second level of work is all about action taking. And action taking also comes from the fact that mothers start to believe that children have to have a great future, and I am as much responsible as possibly the other parent. But the other parent couldn't be bothered. इसीलिए abuse जो करता है उसे ये परवाह नहीं होती कि उसका असर उसके बच्चों पे हो रहा है. इसलिए जो औरत अब्यूज सह रही है, अब्यूज से पीड़ित है, उसकी एक्चुअली मेंटल क्षमता, उसका जो स्ट्रेंथ है, उसको बढ़ाने का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्योंकि ना ही वो अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपने बच्चों की लाइफ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. ऐसा क्यों होता है? जब बच्चे माओ के साथ बहुत ज्यादा टाइम गुजारते हैं दिन में, भले ही वो माँ प्रोफेशनली बाहर जाती हो या ना जाती हो, जो भी असर उसका अब्यूज से हो रहा है, क्योंकि वो दिखता नहीं है, ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन धीरे 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 वो अब्यूज का असर माँ की मेंटल हेल्थ पे हो रहा है, माँ की इमोशनल हेल्थ पे हो रहा है, माँ की सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, करेज पे हो रहा है, माँ को कंफ्यूजन हो रहा है. और साइंस ये प्रूव करता है, और माय एस्टीम डॉक्टर्स नो दैट कि until the age of 7 the child absorbs a lot of things. अगर बढ़ता हुआ बच्चा है और उसने ये सब कुछ देखा है, भले एक्सपीरियंस ना किया हो, लेकिन ये सब कुछ अब्यूज होते हुए अपने घर में देखा है, उसके दिमाग पर छाप आ जाती है. तो बच्चे के लिए विज्ञान ने ये बोला है कि आपका एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है. तो सबसे पहली बात, अगर आप अब्यूज से गुजर रहे हैं और आप अपने बच्चे को ना कुछ बोल के प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो एक्चुअली आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं. क्योंकि बच्चा एक स्पंज की तरह काफी कुछ देख चुका है, काफी कुछ समझ चुका है. इनफैक्ट समझते समझते वो कंफ्यूज भी हो चुका है, क्योंकि उसके माइंड के लिए ये बहुत ज्यादा है. जब आप कोई चीज छुपाते हैं बच्चे से, आप एक मुखौटा अपने ऊपर रखते हैं और आपको ये बताना हो जाता है जरूरी बच्चे को कि नहीं, सब कुछ ठीक है. मुझे अंदर से गुस्सा आ रहा है, या मैं अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हूँ, या अंदर से स्ट्रेस्ड हूँ, या अंदर से कंफ्यूज्ड हूँ, या अंदर से मैं बहुत ज्यादा टूट गई हूँ, क्योंकि मुझ पे अब्यूज होता रहता है. शायद इन लॉ से, शायद हस्बैंड से, शायद किसी और क्लोज रिलेटिव से जिसके एक ही छत के नीचे हम रहते हैं. लेकिन आप बच्चे से जितना ज्यादा छुपाएंगे, उतना ज्यादा बच्चा कंफ्यूज होता रहेगा. तो आपकी अवेयरनेस और आपकी अपनी तरफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप भले ही फैक्ट्स छुपाएं बच्चे से, और वो बच्चे की उम्र पे भी डिपेंड करता है. बट बढ़ता हुआ बच्चा है, 7 साल का, 10 साल का, टीनेजर, सब अपने अपने हिसाब से परसेप्शन लेते हैं. लेकिन हाइड करना इज नॉट द सोल्यूशन. हाइडिंग द अब्यूज दैट यू सफर इज नॉट द सोल्यूशन टू प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन. एंड देयरफॉर आई कम बैक टू द पॉइंट दैट आई स्टार्टेड विद. समाज को बदलना हमारा काम नहीं है. समाज को बदलने की हम इच्छा भी नहीं रख सकते. ये समाज अगर टाबू रखता है, स्टिग्मा रखता है, सेंसिटिविटी रखता है, और ये कहता है कि हमें बात नहीं करनी इस बारे में, ठीक है, हम अपने ऊपर काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, और ये कोई भी औरत ले सकती है. एंड आई एम सेइंग दिस डंके की चोट पे, क्योंकि मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है. आज मैं लाइफ के ऐसे पड़ाव पे खड़ी हूँ जहां पे when I look back, I look at things objectively. And this came from a lot of healing. This came from a lot of inner work. Growth has been uncomfortable. Change has been uncomfortable. The awareness of change has been uncomfortable. But there could be nothing better than this for me to take forward my mission and my life to define my own happiness. And I would love for you to join me on a webinar that I'm holding on how we can protect children in the right way, in a trauma-informed approach. And there are some 6 or 7 secrets, there are 6 or 7 ways that I would love to define for you in a webinar that I'm holding on the 12th of May at 4 p.m. Dr. Tarul, if I could just request you to put the link of that webinar in the chat box. And I would end with this. हमारा self-esteem, हमारी आत्मनिर्भरता,
हमारे हाथ में है और हमारी आवाज हमारी बच्चों की आवाज बन सकती है. So thank you for listening, everyone, and namaskar. Superb, Aarti. I want everyone to click on the link that I have put in the chat box to follow Aarti and also her webinar link. I'm so very happy that you have spoken immensely about the abuse, which is so silently suffered by everyone, very silently suffered. And it's time, therefore, for us as mothers to move from silence to resilience so that we are able to nurture a better generation.